Okay, a very good evening. Okay, a very good evening to one and all. So today the wait is over and we are starting with the discussion of December 2023 paper 2 with detailed explanation. We will try to cover it as early as possible, right? Though the solutions have been provided to the student almost more than 50 days before, but still we would like to put the highlights that how you have to approach the question and if any of the detail which have been included and that's like the beyond the scope of the syllabus. So we will try to make you understand that also. So let's start without wasting any further time. So we are here for the discussion of December 2023 paper 2 solution, right? Or say detailed solution of December 2023. So we will start with each and every question, and basically we will be dealing here with paper 2 only. Sumit sir will be taking paper 1 soon, right? So we will talk about the paper 2 only. And in case you people have any doubt, you can ask me as the same protocol as our regular class, right? And you have to digest each and every detail of the solution so that you can take full advantage in the upcoming exam, right? So let's start without wasting any further time. So moving to question number 1, which is there, which is about the coal petrology, right? And the question says that which of the following are microscopic unit of coal, right? And then you have been given these options. So this was some of the fresh question, which is basically taken from the hardcore geology or the uh, stuff which have never been the part of the exam. Like coal petrology was not there, but still we have to do this in detailed fashion. So let's talk first about coal petrology in detail so that people understand what coal petrology actually is. So when we talk about the coal petrology, so petrology is basically the study of rock. As you know, the petrology is the study of the rocks. And when you talk about the coal petrology, we basically talks about the study of coal. So as have been mentioned here, you can see here that it have been mentioned here that the coal type is related to the type of plant material because we said that the coal is being formed by the fossilization of terrestrial plants. So the coal type is related to the type of plant material, right? And we know that we have different types of coal like anthracite, bituminous, lignite, and peat. We have taught you that in the section energy under the coal. Then if you see that the chemical alteration which have happened inside the coal, then the types can be assessed in terms of variety of petrographic analysis. And coal petrology is concerned with the origin, composition, and property of distinct organic and inorganic component of different coals. जहां पे आप कोल के जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की डिटेल स्टडी करते हैं दैट विल बी रेफर टू एज कोल पेट्रोलॉजी. और अगर हम आज तक की बात करें इफ वी टॉक अबाउट टिल टुडे सो टू डेट द प्रिंसिपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कोल पेट्रोलॉजी हैज इन द स्पेसिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ कोल्स फॉर कार्बनाइजेशन कि कितना अच्छा ये कोल है कितना खराब है इसकी कार्बनाइजेशन करें तो हमें क्या आउटकम मिलेगा ना करें तो क्या मिलेगा तो वो जो प्रॉपर्टी है उस पर जो डिसीजन होना है दैट इज बेसिकली टेकन अंडर द कोल पेट्रोलॉजी. तो अब क्या है कि कोल के दो तरह के कंपोनेंट होते हैं लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक, राइट? सॉरी. तो जब आप मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि जब आप मैक्रोस्कोपिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हो व्हेन यू से मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक में जो सफिक्स ऐड होता है, राइट, तो जो मैक्रोस्कोपिक में जो सफिक्स ऐड होता है जब आप डिवीजन करते हो तो वो होता है एन, ठीक है, एन, AIN लास्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. और जो माइक्रोस्कोपिक है उसके अंदर जो सफिक्स ऐड होता है माइक्रोस्कोपिक छोटे वाला, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में सफिक्स ऐड होता है आइट, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में ऐड होता है आइट. बस ये यहाँ पे गौर फरमाने की चीज है सो दैट आपका जो लर्निंग है वो इजी हो जाए, ठीक है, जो आपका लर्निंग है वो इजी हो जाए. तो माइक्रोस्कोपिक में आइट
और मैक्रोस्कोपिक में एन, ठीक है, AIN, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो बस ये दो चीजें जिसको याद है उसके लिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट्स मूव। तो माइक्रोस्कोपिक में आइट और मैक्रोस्कोपिक में AIN, ये दो सफिक्स आपको याद रखने हैं क्लासिफिकेशन के टाइम पे, राइट। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी। सो लेट्स हैव अ लुक। तो मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट की जब आप बात करते हो गाइस, स्पेशली कोल के, सो व्हेन वी से मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट ऑफ द कोल, राइट। सो मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट ऑफ द कोल विच आर विजिबल विद द नेक्ड आई, मतलब आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, आप उनको ऐसे भी देख सकते हो, राइट, नॉर्मल आईज से। तो दे आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक। एंड मेगास्कोपिकली दे आर डिस्टिंग्विशल इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमिक कोल्स एंड रिकॉग्नाइज एज, देखो मैंने कहा ना मैक्रोस्कोपिक में AIN आएगा, विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन एंड फ्यूजेन। ये चार तरह के आपके मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट में हम काउंट करते हैं, विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन एंड फीजेन, ठीक है ना। तो ये आपको इजीली रिमेंबर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से रिमेंबर कर सकते हैं। एंड दीज वेराइटीज ऑफ द कोल्स हैव बीन इन्वेस्टेड विद द स्टेटस ऑफ द सेपरेट रॉक टाइप्स एंड आर देयरफॉर टर्म्ड एज लिथोटाइप्स। इनको हम लिथोटाइप्स भी कहते हैं मैक्रोस्कोपिक कोल के। क्या यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, क्योंकि ये कोल पेट्रोलॉजी का नया ऐड हुआ है तो आपको डिटेलिंग इसकी पता होनी चाहिए, क्या चीजें हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा पर्पस इस डिटेल डिस्कशन में यही है। सोल्यूशन तो हमने पहले ही 50 दिन पहले सबको दे दिया है, ठीक है। हमारा पर्पस ये है कि ईच एंड एवरी डिटेल शुड बी स्मूदी, आपको पता हो, ठीक है। तो बड़े वाले को देते हैं एन, ठीक है। तो फोर मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट ऑफ द कोल आर विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन एंड फ्यूजेन, ठीक है। तो विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन एंड फ्यूजेन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चार आपके मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट है। इस पे वन बाय वन चलते हैं। विट्रेन क्या होता है? दे आर एसेंशियली ब्राइट ग्लॉसी, ठीक है, ब्राइट कलर का होता है, ग्लॉसी होता है, ठीक है, जैसे ग्लॉसी शीट आती है ना आपकी। ब्रिलियंट इन लस्टर एंड होमोजेनस कंपोनेंट ऑफ द कोल, हैविंग मैसिव टेक्सचर एंड शोइंग कैरेक्टरिस्टिक विट्रस कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर। तो ये टाइप्स ऑफ एक फ्रैक्चर है जिसपे डिटेल में आपको नहीं जाना है, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर शो करता है, ये बस ध्यान रखना है। सेकंड, जो क्लेरेन है ब्राइट कंपोनेंट होता है कोल का ओवरऑल, ठीक है, बट लेस ब्राइट देन विट्रेन, उससे कम ब्राइट होगा। एंड इट इज हिट्रोजेनस मटेरियल, अलग अलग दिखेंगे आपको, विद अ बेंडेड स्ट्रक्चर एंड हैज अ डेफिनेट एंड स्मूथ सरफेस व्हेन फ्रैक्चर एट राइट एंगल टू बेडिंग प्लेन। तो जब उसको फ्रैक्चर करते हैं तो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, ये भी ध्यान रखना है। ड्यूरेन की जब हम बात करते हैं, एसेंशियली डल कंपोनेंट ऑफ कोल, ओफन विद सजेशंस ऑफ स्लाइटली ग्रीसी कलर का होगा, ब्लैक होगा ओवरऑल अपीयरेंस में, एंड यूजुअली हार्डर देन ब्राइट कोल। और ये भी हिट्रोजेनस होता है और ग्रेजुअल टेक्सचर होता है इसका, ये ध्यान रखना है आपने। फ्यूजेन, इट अकर्स इन द पॉकेट और द पैचेस, फ्यूज में रहता है। यूनिफॉर्म ब्रांड होगा, सॉफ्ट होगा, समवट फाइब्रस मटेरियल होगा, इसमें रिजेबलिंग चारकोल जैसा दिखेगा, हाईली फ्राइएबल एंड कैन बी रीडली पावर्ड बाय फिंगर, इसको आसानी से आप पीस सकते हो, मतलब हाथ से भी इसका चूरा आप बना सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? कि ये चार हमारे मैक्रोस्कोपिक है जो आपको पता होने चाहिए, ये कोल के मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? डिटेल सारी आपके पास है, सोल्यूशन में एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। अब क्या है कि जो आपके जो आपके कोल्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि जो सेप्रोफिलिक कोल्स है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक होते हैं कैनल कोल्स और दूसरे होते हैं बॉग हेड कोल्स, ठीक है। तो जो पहले वाला है, जो कैनल कोल है, दैट इज डलिश ब्लैक विद अ वाइट स्लाइटली ग्रीसी अपीयरेंस एंड कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर रहेगा उसमें, और जो दूसरे वाला है वो ब्राउनिश कलर का रहेगा कोल। तो बॉग हेड कोल ये होते हैं। लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट की भी बात करते हैं और सीधा आगे निकल जाते हैं। मुझे इंटरेस्ट दिखाना है किसमें? माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट में, क्योंकि मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस यहाँ पे मेन है मेरे लिए। बाकी की डिटेलिंग आप कर सकते हैं, लिटरेचर हमने दिया है, क्योंकि अगर प्लस माइनस क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी उससे। लेकिन हमें मेन मैक्रो माइक्रो, तो माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट कोल के कौन से होंगे मैंने बताया था। माइक्रोस्कोपिक में सफिक्स लगेगा आइट। तो ये माइक्रोस्कोपिक क्या है कि इतने छोटे हैं दैट यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज देम, तो इनविजिबल टू नेक्ड आईज एंड जस्ट एज अ रॉक इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल मिनरल, द कोल कंपोज ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट रहते हैं, जैसे आपकी रॉक में बहुत सारे रहते हैं ना, ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट रहेंगे अलग अलग। सेप्रोपेलिक क्या होता है, ठीक है,
सेप्रो बताओ क्या होता है, सेप्रो का मीनिंग क्या है मुझे ये बता दो, फिर मैं आपको सेप्रोपेलिक बता दूंगा। जो डार्क कलर का सेडिमेंट होता है ना और जो ऑर्गेनिक रिच होता है उसको हम कहते हैं सेप्रोपेलिक। जब कोल पेट्रोलॉजी की बात करते हो तो सेप्रोपेलिक का मतलब होता है कि जो मरीन ओरिजिन का हो और डार्क कलर का हो और उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हो। क्या ये बात समझ में आई है? तो सेप्रोपेलिक आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक मैटर जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, जनरली 2% से भी ज्यादा होता है जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है, या ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको हम सेप्रोपेलिक कहते हैं। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको, जैसे डेड एंड डिकम्पोज मैटर में होता है ना सेप्रोफिटिक, उसी तरह से कुछ कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी रिजेम्बलेंस दे रही है बट नॉट अप टू द मार्क। यहाँ पे खाली ऑर्गेनिक मैटर की बात हुई है क्योंकि, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, हमने ये दोनों तरह की, हाँ, तो ये आपको पता चल गया सेप्रोपेलिक कोल क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहेगा। जस्ट अ मिनट। और डाउट जो है वो पूछने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्कशन इसीलिए ही चलाया गया है सो दैट जो भी क्लियरिटी आपको ये वाले सॉल्यूशन के रिगार्डिंग लेनी है वो आप ले सकते हैं डिटेल में, क्योंकि बाकी सारे तो अवेलेबल है ही आपके पास और उसका रिकॉर्ड भी है, तो उसमें दिक्कत आएगी नहीं ज्यादा। अगर कोई दिक्कत आनी है तो हम लाइव यहाँ पे डिस्कस करें एंड टेक आउट द बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट आउटकम रहेगा फॉर द अपकमिंग एग्जाम। जस्ट तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमने ये बातें कर ली सारी। और मैंने आपको बोला कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक कोल रहता है उसमें जो सफिक्स है वो आइट लगता है, तो सफिक्स जब आइट लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट फाउंड इन द हाई एंड मीडियम रॉक्स कोल आर विट विट विट्रिनाइट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका एक्जिनाइट, इंट्रेनाइट, ये हो गए आपके कुछ टाइप्स जो है, उनको अभी डिटेल्स में हम देख लेंगे थोड़ा सा। और एक आपके रहेंगे ये, ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके जनरली हैं, और फ्यूजनाइट भी है, सेमी फ्यूजनाइट भी है जो आखिरी में मेंशन किए गए हैं, पर वो एक ही सब ग्रुप में आते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव पुट अप देयर देम देयर ओनली, राइट, क्योंकि एक ही सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अब इनकी थोड़ी डिटेलिंग हम कर लेते हैं, जो आपके फर्दर जो चारों टाइप्स हैं उनकी डिटेलिंग हम कर लेते हैं सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से माइक्रो में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विट्रीनाइट क्या होता है। तो विट्रीनाइट इज टर्म एज ह्यूमिनाइट, मतलब जिसमें ह्यूमिक्स ज्यादा होगा, फॉर पीट एंड लिग्नाइट और लो रैंक कोल, इनके लिए वर्डिंग यूज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड एसेंशियली वुडी डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सेल सब्सटेंस, varying in appearance from being completely structure and exhibiting well desirable tissue, दिखे जो major component of vitrain and one of the two principal component of chlorine, right? तो ज्यादातर कंपोनेंट में विट्रेन आपका रहेगा, ठीक है, और मेनली उसमें क्लेरेन आपको दिखाई देगा एक एज ए स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद जो हमने दूसरा बताया आपको एक्जिनाइट, ये भी आपका, हाँ, ज्यादा होता है, ठीक है। तो लिप्टिनाइट इन लो रैंक कोल, एक्जिनाइट जो होता है लिप्टिनाइट का एक सब टाइप है, एंड डिराइव्ड फ्रॉम द सेक्रीशन एंड वैक्सी कोटिंग ऑफ द प्लांट, मतलब जो प्लांट से वैक्सी कोटिंग या सेक्रीशन निकलते हैं उससे जनरली ये फॉर्म होता है, ठीक है। और इसकी रिफ्लेक्टेंस कम होती है, ठीक है, विट्रिटाइन से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लेरेन और ड्यूरोइन आपको दिखेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, गुड कोल या बैड कोल से कोई उसका इशू नहीं है, वो तो लोगों की अपनी अपनी एनालिसिस है कि ऐसा दिखता है। और लास्ट में इंटरटाइन, derived mainly from the oxidized plant material with or without recognizable plant structure and higher reflectance than vitrite. Major component is fusian यहाँ पे, and one of the two principal component of durain in, अब एक होता है आपका मैसेरल एनालिसिस, ठीक है। तो मैसेरल एनालिसिस जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, फर्दर सब ग्रुप बनाते हैं, जैसे मैक्रीनाइट है, ठीक है, मैक्रीनाइट है, माइक्रीनाइट है, सेमी फ्यूजिनाइट है, एंड फ्यूजिनाइट है, मतलब जो आपके फर्दर सब ग्रुप बन रहे हैं वो इनके बेसिस पे बनेंगे, ठीक है।
और कोल पेट्रोलॉजी में ये जनरली जो है अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मैसेरल एनालिसिस, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मैसेरल एनालिसिस क्या कहता है? इट इज अ टेक्निक वाइडली यूज फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द बिहेवियर ऑफ कोल ड्यूरिंग कार्बनाइजेशन। जब इसका आप कन्वर्जन करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि भाई क्या इंटरनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उससे आप एक तरह का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस तरह का दिखेगा। ठीक है, और माइक्रोलिथोटाइप टाइप तो हमने ऊपर बता ही दिए थे एनालिसिस में। तो यहाँ पे इसको एक डिवीजन में रख लिया कि एक प्रिंसिपल मैसेरल ग्रुप हो गया आपका, जो अलग अलग ग्रुप बने, छोटे छोटे ग्रुप बने, कि प्रिंसिपल मैसेरल ग्रुप कौन सा है और प्रिंसिपल माइक्रोलिथोटाइप ग्रुप कौन सा है। जैसे कोई आपसे कहे कि जो प्रिंसिपल मैसेरल ग्रुप रहेगा विट्रीनाइट, तो विट्रीनाइट तो माइक्रोलिथोफाइट में आएगा, इसका विट्रीनाइट ही रहेगा। माइक्रोलिथोटाइप, क्योंकि माइक्रो बोला ना, मैक्रो नहीं बोला। विट्रीटाइन और एक्जिनाइट होंगे, ठीक है, तो उसमें क्लेराइट रहेगा जो आपका माइक्रोलिथोटाइप ग्रुप है। ऐसे विट्रीटाइन और इंट्रीटाइन रहेंगे तो विट्रीटाइनाइट होगा। तो ये इनके सब ग्रुप दिए हुए कि कौन सी माइक्रोलिथोफिटिक ग्रुप के अंडर में आती है सब डिवीजन, जो इनके ग्रुप्स बने हुए हैं। ये बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसका आइडिया लेना है। एक साथ ये सारे ग्रुप तो नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, ऐसे ही जैसे लिथोटाइप बताया उसने कि लिथोटाइप कौन सा होगा, तो उसका जो है प्रिंसिपल माइक्रोलिथोटाइप कौन सा है, ऐसे लिथोटाइप बता दिया एक तरफ, और कौन सा प्रिंसिपल माइक्रोलिथोटाइप है। जैसे प्रिंस लिथोटाइप हो गया विट्रेन और क्लेरेन। अब आप ही को बताइए मैक्रो केयर टाइप, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई कोई सब यूनिट मिल सकती है जो माइक्रोलिथोफाइट की हो, जैसे विट्रीटाइट, विट्रीटाइट क्लेराइट, विट्रीटाइट, है ना, ट्राइमेथाइट, ड्यूराइट। ऐसे ही अगर कहीं पे लिथोटाइप आपका ड्यूरेन या फ्यूजेन हो गया तो ड्यूराइट। मतलब जहां पे भी माइक्रो का जिक्र होगा आइट सफिक्स लगेगा आपका। क्या ये क्लियरिटी सबको है इस क्वेश्चन के बारे में? जो आपको डिटेल देनी थी वो एक्चुअल डिटेल ये थी कि माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस हमें पता चले। ठीक है, और क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है तो थोड़ा सा उसमें डिटेलिंग हमें चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। जैसे ही आपने पढ़ा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन में पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग आर माइक्रोस्कोपिक यूनिट, तो जैसे ही आपने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिक है तो जिनके पीछे सफिक्स आइट लगाओ उनको आप अलग कर लो। विट्राइट, ठीक है, एक तो यही साहब हो गए। ठीक है, एक्साइट ये हो गए, इंटराइट ये हो गए, और बाकी के जो क्लेरेन और ड्यूरेन है वो आपके मैक्रोस्कोपिक हो गए। तो यहां पे मेरा जो आंसर है, बिकॉज ए सी और ई ही ऐसे है जिनके अंदर माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा गाइस 3। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 3, ए सी एंड ई ओनली, बिकॉज विट्रिनाइट, एक्जिनाइट, है ना, इनर्टिनाइट, ये सारे आपके माइक्रोस्कोपिक है। क्लेरेन एंड ड्यूरेन क्या है? मैक्रोस्कोपिक है। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्लेरेन और ड्यूरेन जो है वो मैक्रो है। क्लियर है ये बात सबको? किसी को अगर कोई डाउट हो देखो भाई पूछ लो। ये हमारी जो एक्टिविटी का पर्पस रहता है, दिस इज फॉर कि ये एक्टिविटी से हमारे स्टूडेंट को क्लियरिटी आए, कोई डाउट ना रहे, जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि छोटा सा डाउट भी आपको इशू कर सकता है एग्जाम में। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हेयर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।